हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में 14 चैप्टर स्ट्रेंथ। One of the important qualification of a spiritual aspirant is strength, physical and mental. Weaklings have no place in spiritual life. This Atma is not to be attained by the weak, says the Upanishad. Physical strength. First point is physical strength. First of all, the body must be strong. You don't have to be a wrestler, but the body must be healthy and strong enough to withstand the tremendous mental strain and struggles that spiritual practice involves. Do not take a negative attitude towards your body. This body is yours is something noble, a temple of the divine. You need not identify yourself with it or get attached to it. You may treat it as a house in which you dwell or a machine you operate. Keep it pure and trim. Take regular exercise. Asanas, yogic exercise are no doubt good, but if you cannot do all those asanas, you may take some simple exercise in fresh air. I am telling you all this because spiritual aspirants have a tendency to neglect the health of their body. In the early days of your spiritual striving, when you are in the midst of too many conflicts, you may not realize the advantage of having a strong physique. But later on, as your spiritual life becomes smooth and you gain the ability to practice concentration for a long time, you will realize what an asset a healthy body is. This body of ours is like a boat which enables us to cross the ocean of worldly life. See that it does not spring a leak. Overloading the stomach must be avoided. Take nourishing but light food. Avoid all forms of indulgence. Strict continence is essential for making the brain strong and cool. Those who do not observe continence will find their brain getting heated up quickly. Without continence, the brain will not have the power to withstand prolonged meditation. Just as it is a pleasure to ride a well trained horse, so it is a source of great joy to live in a healthy and well controlled body. The sensualist has no idea as to how much joy chaste and pure body gives. Self control and purity may be in the beginning the cause of tension and suffering, but later on they become a source of great happiness, peace, and contentment. A healthy and strong mind is, of course, more important. Weak minded people cannot accept a high ideal and pay a high price for it. They are scared away by the struggles and sacrifices that spiritual life involves. Strengthen your mind, strengthen your will. मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज है 14th चैप्टर स्ट्रेंथ, शक्ति, ताकत। आध्यात्मिक साधक की एक महत्वपूर्ण योग्यता शारीरिक और मानसिक शक्ति है। कमजोर लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं। उपनिषद में भी कहा गया है कि यह आत्मा कमजोर लोगों को प्राप्त नहीं होती। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले शरीर मजबूत होना चाहिए। आपको पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर इतना स्वस्थ और मजबूत होना चाहिए कि वह अनुष्ठान अभ्यास में शामिल जबरदस्त मानसिक तनाव और संघर्ष को झेल सके। अपने शरीर के प्रति नकारात्मक रवैया न रखें। आपका यह शरीर बहुत महान है, ईश्वर का एक मंदिर है। आपको इसके साथ अपनी पहचान बनाने और इसके साथ आसक्त होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसे घर के रूप में मान सकते हैं जिसमें आप रहते हैं, और ये एक मशीन के रूप में जिसे आप चलाते हैं। इसे शुद्ध और सुव्यवस्थित रखें। नियमित व्यायाम करें। यौगिक व्यायाम निसंदेह अच्छे हैं। यदि आप वे आसन नहीं कर सकते तो आप ताज़ी हवा में कुछ सरल व्यायाम कर सकते हैं। मैं आपको यह सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आध्यात्मिक ता में अपने शरीर के स्वास्थ्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति हो जाती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा और आप लंबे समय तक एकाग्रता से अभ्यास करने की क्षमता हासिल कर लेंगे,
आपको एहसास होगा कि स्वस्थ जीवन कितनी बड़ी संपत्ति है। हमारा शरीर एक नाव की तरह है जो हमें सांसारिक जीवन के सागर को पार करने में सक्षम बनाती है। ध्यान रखें कि इसमें कोई रिसाव न हो। पेट पर बोझ डालने से बचना चाहिए। पौष्टिक हल्का भोजन लें, सभी प्रकार के भोग विलास से बचें। मस्तिष्क को मजबूत और ठंडा रखने के लिए सख्त संयम आवश्यक है। जो लोग संयम का पालन नहीं करते उनका मस्तिष्क जल्दी गर्म हो जाता है और बिना संयम के मस्तिष्क में लंबे समय तक ध्यान करने की शक्ति नहीं होती। जिस तरह से एक प्रशिक्षित घोड़े की सवारी करना आनंददायी होता है, उसी तरह एक स्वस्थ और नियंत्रित शरीर में रहना भी बहुत आनंददायी होता है। भोगवादी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि एक पवित्र और शुद्ध शरीर कितना आनंद देता है। संयम और पवित्रता शुरुआत में तनाव और दुख का कारण हो सकते हैं, लेकिन बाद में वे महान सुख, शांति और संतोष का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग बेशक अधिक महत्वपूर्ण है। कमजोर दिमाग वाले लोग उच्च आदर्श को स्वीकार नहीं कर सकते और इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आध्यात्मिक जीवन में शामिल संघर्षों और बलिदानों से वे लोग डरते हैं। इसलिए अपने दिमाग को मजबूत करें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, फेथ एंड परजर्वरेंस, अर्थात मानसिक शक्ति की परीक्षा, विश्वास और दृढ़ता। One of the tests of mental strength is faith and perseverance. Only a strong mind can have a firm faith. You must believe firmly. I am a being who can achieve something in the world of spirit. Such in spiritual life depends on our family and steadily holding on the spiritual ideal. In the midst of the confusion and darkness of the relative plane, we must hold on a definite course of action, thinking, feeling, and willing. Otherwise, spiritual lives come to nothing. It often happens to many spiritual aspirants set out with great enthusiasm, but soon their fervor evaporates when they meet with various kind of obstacles, mostly of their own making. Great tenacity of purpose is needed, as Swami Vivekananda always insisted on in the lives of his followers. मानसिक शक्ति की एक कसौटी है विश्वास और लगन। केवल एक मजबूत मन ही दृढ़ विश्वास रख सकता है। आपको दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ हासिल कर सकता हूँ। आध्यात्मिक जीवन में सफलता हमारे आध्यात्मिक आदर्श पर दृढ़ता और दृढ़ता से टिके रहने पर निर्भर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सापेक्षिक धरातल के सभी भ्रम और अंधकार के बीच हमें निश्चित कार्य, सोच, भावना, इच्छा के मार्ग पर डटे रहना होगा। नहीं तो आध्यात्मिक जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कई आध्यात्मिक आकांक्षी बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी ही उनका उत्साह गायब हो जाता है और जब उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो ज़्यादातर उनकी खुद की बनाई हुई होती हैं। उद्देश्य की महान दृढ़ता की आवश्यकता है और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अनुयायी के जीवन में हमेशा जोर दिया था। And here next point is ability to take decisions. The second test of mental strength is the ability to take firm decision. Indecision is always a sign of mental weakness. It shows there are unresolved conflicts within you, and conflicts undermine the integrity of personality. If we remain in a state of indecision for a long time, instead of gaining strength, we become weaker. To remain in a state of indecision and then try to make your mind strong is stupid. You must be very decisive in small things. Then we find it easier to take decision about bigger things. Even the smallest thing in life is to be done consciously, intelligently, decisively, coordinating all the faculties, feeling, thinking, and willing. Cultivate good habits early in life.
a well regulated life is a great help. If we follow a strict routine every day, many of the little problems of life will not create indecision and worries. Then we get more energy and time for bigger things. Those who find it difficult to decide what to eat, what to wear, how to walk, how to sit, and so on. How can such people think about God constantly? We must not lie on the bed. Go on thinking for half an hour. Shall I get up or not? Either get up immediately or sleep for another half an hour, but do not remain in undecisive state. Shall I sit for meditation or not? Decide at once. Indecision is very harmful. Do your studies, meditation, work, etc. at regular times, whether you feel inclined or not. Let not the little things of life nag you constantly and dissipate your energies. अगला पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता। मानसिक शक्ति की जो दूसरी कसौटी है वह है दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता। अनिर्णय हमेशा मानसिक कमजोरी का संकेत है और यह दर्शाता है कि आपके भीतर अनसुलझे संघर्ष हैं और संघर्ष व्यक्तित्व की अखंडता को कमजोर करते हैं। यदि हम लंबे समय तक अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं तो ताकत हासिल करने की बजाय हम और कमजोर हो जाते हैं। अनिर्णय की स्थिति में रहना और फिर अपने मन को मजबूत बनाने की कोशिश करना मूर्खता है। हमें छोटी छोटी बातों में बहुत निर्णायक होना चाहिए, तब हम बड़ी चीज़ों के बारे में निर्णय लेना हमारे लिए आसान होगा। जीवन में सबसे छोटी चीज़ भी होश पूर्वक बुद्धिमानी से निर्णायक रूप से सभी भावनाओं, विचारों और इच्छा शक्ति का समन्वय करते हुए करनी चाहिए। जीवन में कम उम्र से ही अच्छी आदतें विकसित करें। एक सुव्यवस्थित जीवन बहुत मददगार होता है। यदि हम हर दिन एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं तो जीवन की कई छोटी छोटी समस्याएं अनिर्णय और चिंता पैदा नहीं करेंगी। तब हमें बड़ी चीज़ों के लिए अधिक ऊर्जा और समय मिलेगा। जो लोग यह तय करने में कठिनाई महसूस करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है आदि, ऐसे लोग लगातार भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हमें बिस्तर पर लेटे लेटे आधे घंटे तक ये नहीं सोचना चाहिए कि उठूं या नहीं। या तो तुरंत उठ जाएं या फिर आधे घंटे और सो जाएं, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में न रहें। ध्यान के लिए बैठूं या नहीं, तुरंत निर्णय लें। अनिर्णय बहुत नुकसानदायक होता है। अपनी पढ़ाई, ध्यान, काम आदि नियमित समय पर करें, चाहे आपका मन हो या ना हो। जीवन की छोटी छोटी बातों को लगातार परेशान न होने दें और अपनी ऊर्जा को नष्ट न होने दें। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू कंट्रोल इवन गुड थॉट्स। Strength is needed in controlling not only bad thoughts and impulses but also good ones. For very often we find that those who are not able to control their good feelings and impulses are not able to control their bad feelings and impulses either. Feelings, whether good or bad, need to be controlled. Our power to control them must be increased, and that is the most important thing. We should gain mastery over our feelings, the be fully conscious and definite. अच्छे विचारों को भी नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। न केवल बुरे विचारों और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए, बल्कि अच्छे विचारों और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि जो लोग अपनी अच्छी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते, वे अपनी बुरी भावनाओं और आवेगों को भी नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते। भावनाएं चाहे अच्छी हों या बुरी हों, उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उन्हें नियंत्रित करने की हमारी शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करनी चाहिए, पूरी तरह से सचेत और निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फियरलेसनेस। Another sign of mental strength is fearlessness. Sometimes much of our energy is lost through fear. We should not be too bold and think we are too secure.
But the person who is always afraid of falling down is secure to fall, is sure to fall, just as the person who is overconfident is sure to slip. As we go higher and higher, there is always the danger of our slipping and falling. But that is no reason for our being continually haunted by the fear of falling. अगला जो पॉइंट है वह है निर्भयता। मानसिक शक्ति का एक और लक्षण है वह है निडरता। कई बार हमें बहुत सी ऊर्जा डर के कारण हमारी नष्ट हो जाती है और हमें बहुत अधिक साहसी भी नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरने से डरता है उसको गिरना तो निश्चित ही है। ठीक वैसे ही जैसे जो आत्म व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वासी होता है उसका फिसलना भी निश्चित ही होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमारे फिसलने हमारे गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमें लगातार गिरने के डर से परेशान रहना चाहिए। जैसा कि देयर इज नो सिक्योरिटी ऑन द रिलेटिव प्लेन, गॉड विजन अलोन कैन ग्रांट अस एब्सोल्यूट फियरलेसनेस। In Vrahadaranaka Upanishad, there is a passage. Now, Janaka, you have attained fearlessness. This is the state of absolute fearlessness which one attains to after self realizing. The Upanishad identifies fearlessness with Brahma. Fearlessness needed in Brahma. Another Upanishad says fear is produced in a person whenever he perceives duality. The more we realize our true self, the more we see the divine everywhere and the more fearless we become. सापेक्ष धरातल पर कोई सुरक्षा नहीं है, केवल ईश्वर दर्शन ही हमें पूर्ण निर्भयता प्रदान कर सकते हैं। बृहदारण्यक में उपनिषद में एक अंश है कि अब जनक आपने निर्भयता प्राप्त कर ली और यह पूर्ण निर्भयता की वह अवस्था है जिसे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के बाद प्राप्त करता है। उपनिषद निर्भयता को ब्रह्मा से जोड़ता है कि निर्भयता ही ब्रह्मा है। एक अन्य उपनिषद कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति द्वैत को देखता है तो उसमें भय उत्पन्न होता है। जितना हम अपने सच्चे स्व को महसूस करते हैं उतना ही अधिक हम हर जगह ईश्वर को देखते हैं और हम उतने ही अधिक निर्भय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन वायलेंस। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अहिंसा और नॉन वायलेंस। इफ यू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस आउट ऑफ cowardice, it is no merit at all. Real non-violence means the greatest strength, the power of endurance that a man can attain to. It means the greatest courage coupled with the greatest love. It means total absence of hatred. That is what Sri Krishna tried to teach Arjuna in Gita. He exhorted him to do his duty, which is in his case happened to be fighting without hating others. Hatred is as bad as attachment. Anger is as bad as lust. Never make a mistake about this. When you lead the spiritual life, do not stand in anybody's way. Do not preach hatred or aversion against anybody, whoever he be. Do not try to elbow out other. Do not sacrifice others for the sake of your interests or in the interest of those who are dear to you. In the animal kingdom, struggle for existence may be necessary, but because there the law of survival of the fittest operates. But man is not an animal and should not behave like an animal. He must transcend the laws of animal kingdom and try to reach the kingdom of God. In the kingdom of God, the law is love and sacrifice. अगला पॉइंट है अहिंसा। यह हमें शक्ति के दूसरे लक्षण की ओर लेकर जाती है, अर्थात अहिंसा। हाँ, यदि आप कायरता के कारण अहिंसा का अभ्यास करते हैं तो यह कोई योग्यता नहीं है।
वास्तविक अहिंसा का अर्थ है सबसे बड़ी शक्ति और सहन शक्ति जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है सबसे बड़ा साहस और सबसे बड़ा प्रेम। इसका अर्थ है घृणा का पूर्ण अभाव। और यही वह बात है जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया और उसके मामले में दूसरों से घृणा किए बिना युद्ध करना था। घृणा आसक्ति जितनी ही बुरी है, क्रोध वासना जितना ही बुरा है। इस बारे में कभी गलती नहीं करें। जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो किसी के रास्ते में न आएं, किसी के प्रति घृणा या द्वेष का उपदेश न दें, चाहे वह कोई भी हो। दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। अपने हितों के लिए, अपने प्रियजनों के हित के लिए दूसरों का बलिदान न करें। पशु जगत में अस्तित्व के लिए संघर्ष आवश्यक हो सकता है क्योंकि वहाँ सबसे योग्य व्यक्ति का जीवित रहने का नियम लागू होता है। लेकिन मनुष्य पशु नहीं है और उसे पशु की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे उससे पार जाना होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति का आदर्श है वह आसक्ति और घृणा से अप्रभावित रहे और उसे दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों के दुखों को खुद से ज़्यादा महसूस करता है। अहंकारी या हिंसक व्यवहार करने वालों के लिए भी उसके मन में दया के अलावा कुछ नहीं होता। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, चाहे भले ही उसके लिए कितना बड़ा उसको त्याग करना पड़े। लेकिन वह करुणा के नाम पर सांसारिकता में फंसने से इनकार करता है और वह दूसरों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए जाने से भी इनकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज destructive aspect of truth. Our heart is to be made consciously a cremation ground, the cremation ground of all our attachment, our impurities, our ego. This endless burning in the worship of the Lord, the only true worship there is, and it should never unnerve us. Our trouble is that we worship only a God who gives us pleasure and sense satisfaction, but is not misery also His. Everywhere we worship the God who is the giver of boons, but as soon as we think of Him as the destroyer, we are afraid. Shiva as a giver of boon is all right. Shiva dancing, the mad dance is destruction is horrible. Why? There is no rhymes or reason in our attitude. God is God only when there is creation, when there is a preservation. But when there is destruction, God has no hand in it. No, that cannot be. God is God only when He is God in all aspects. When He is the God of creation, preservation, and destruction, and above all, the God who is none of all these. So, the present day reaction against the religion is a merely good God is to be appreciated. When you give the modern mind a kind and the good God, it will throw him overboard. But when you give the modern mind and real God, it will in most cases accept him. God as creator, preserver, and destroyer is mother. Mother again in her absolute aspect. Beyond all these is Shiva. Thus, the relative aspect of God, as it were the mother, the absolute aspect of God. The same mother in her state beyond creation, preservation, destruction is Shiva. Mother is dancing her made play of creation, preservation, and destruction on Shiva, who is lying under her feet, motionless and unconcerned, appearing to be dead. What wonderful, infinitely deep symbol of truth all these are. Why to be afraid of death? Death can be glorious. Where do we find the greatest play of mother? Only in the cremation ground. And the cremation ground is as real and true as the nursery. In life and in death, the aspirant should cling to the mother and to the mother alone, giving up attachment or fear for both life and death.
It always happens that he who has a great fascination for pleasant things get misery. Physical distress is nothing compared to the mental distress and suffering we all have to pass through in life. So, we should always know that truth is beyond happiness and misery and can only be attained by transcending them both. Ramaprasad says, "O my fickle mind, never stop taking the name of the mother at all times. Come what may, you pass through misery. You may have more, what does it matter? No physical suffering can ever be compared to the terrible tempest raging in the human mind. And all this tempest can never be transcended so long as we cling to life in its pleasant aspect and deny or try to deny its terrible aspect. We must be fully prepared to transcend both the good and terrible aspect of God if we really wish Him and acquire peace and blessedness. अगला जो पॉइंट है वह है सत्य का विनाशकारी पहलू। अपने हृदय को सचेतन रूप से शमशान बना लेना चाहिए। अपनी सभी आसक्तियाँ, अपनी अशुद्धियाँ, अपने अहंकार का शमशान। यह अंतहीन जलन ही भगवान की पूजा है, यही एक सच्ची पूजा है। और इसमें हम कभी विचलित नहीं हमको होना चाहिए। और हमारी परेशानी यह है कि हम केवल उसी भगवान की पूजा करते हैं जो हमें सुख, इंद्रिय तृप्ति देता है, लेकिन क्या दुख भी उन्हीं का नहीं है? यह सर्वत्र वरदान देने वाले भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें संहारक के रूप में सोचते हैं तो हम डर जाते हैं। वरदान देने वाले शिव का होना ठीक है, विनाश का पागल नृत्य करते हुए शिव का नाचना भयानक है। क्यों? हमारी दृष्टि में कोई तुक या कारण नहीं है। भगवान तभी भगवान है जब वह सृजन होता है, जब संरक्षण होता है, लेकिन जब विनाश होता है तो उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान तभी भगवान है जब वे सभी पहलुओं में भगवान है। वे सृजन, संरक्षण और विनाश के भगवान हैं, और सबसे बढ़कर वे भगवान हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है। और इसलिए सिर्फ अच्छे ईश्वर के धर्म के खिलाफ आज की प्रतिक्रिया को समझा जाना चाहिए। जब आप आधुनिक दिमाग को एक दयालु और अच्छा ईश्वर देते हैं तो वह उसे किनारे कर देगा, लेकिन जब आप आधुनिक दिमाग को असली ईश्वर देते हैं तो वह ज़्यादातर मामलों में उसे स्वीकार कर लेता है। सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक रूप में भगवान माँ हैं। माँ ही अपने पूर्ण स्वरूप में इन सब से परे शिव है। इस प्रकार भगवान का सापेक्ष रूप माँ है। भगवान का निरपेक्ष रूप अर्थात वही माँ जो सृजन, पालन, संहार से परे अपनी स्थिति में है, शिव है। माँ अपने सृजन, पालन और संहार की उन्मत्त लीला है। शिव पर नृत्य कर रही है, जो उनके पैरों के नीचे निश्चल और स्थिर लेटे हुए हैं। बेफिक्र, मृत प्रतीत होते हुए ये सब सत्य के कितने अद्भुत, अनंत, गहन प्रतीक हैं। मृत्यु से क्यों डरना? मृत्यु गौरवशाली हो सकती है। माँ की सबसे बड़ी लीला हमें कहाँ मिलती है? केवल शमशान में, और शमशान भी उतना ही वास्तविक और सत्य है जितना कि नर्सरी। जीवन और मृत्यु में आकांक्षी को जीवन और मृत्यु दोनों के लिए ही लगाव को दूर करें। ऐसा हमेशा होता है कि जो व्यक्ति सुखी चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है उसे दुख मिलता है। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पीड़ा की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिसे हम सभी को जीवन में से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ये जानना चाहिए कि सत्य सुख और दुख से परे है, और इसे केवल हम उन दोनों से परे जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। राम प्रसाद गाते हैं कि हे मेरे चंचल मन, माँ का नाम लेना कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दुख से गुजरते हो, तुम्हारे पास और भी हो सकता है, इससे क्या फर्क होता है? किसी भी शारीरिक पीड़ा की तुलना मानव मन में उठने वाले भयानक तूफानों से नहीं की जा सकती। और यदि इन सभी तूफानों को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक हम जीवन के सुखद पहलू से चिपके रहते हैं, इसके भयानक पहलू को नकारते हैं या नकारने की कोशिश करते हैं।
अगर हम वास्तव में ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं और शांति आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के अच्छे और भयानक दोनों पहलुओं से पार जानना चाहिए और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक ऑफ आत्मा। Think about the Atma standing behind your body and mind. That is our real nature. To the extent we dissociate ourselves from the false personality and identify ourselves with the spirit, we get fearlessness and strength, we get purity and peace. To the extent we identify ourselves with the divine in us, we become saintly. When a person is outgoing, he becomes a sinner. When he withdraws into his self, he becomes a saint. आत्मा के बारे में सोचो। अपने शरीर और मन के पीछे स्थित आत्मा के बारे में सोचो। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जिस हद तक हम अपने आप को झूठे व्यक्तित्व से अलग करके आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, हमें निर्भयता और शक्ति मिलती है, हमें पवित्रता और शांति मिलती है। जिस हद तक हम खुद को ईश्वर के साथ पहचानते हैं, हम संत बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहिर्मुखी होता है तो वह पापी बन जाता है, और वही जब अपने आप में सिमट जाता है तो वह संत बन जाता है। The secret of success is ethical and spiritual life is to look upon oneself as a spiritual being, by pure by nature and self-luminous in its essence. During our meditation, we have to drive this idea into the very depth of our consciousness, and then the pure of self luminous nature of the self will manifest even in the body and the mind. Let those who want to weep over their sins do it by all means. Let us, on the other hand, think of the divine, the ever pure, eternal self, the Atma within us, and assert its glory. Let us always try to remember, even when the mind is clouded and inclined towards evil, these wonderful words of Swami Vivekananda. Arise, awake, awake from the hypnotism of weakness. None is really weak, the soul is infinite, omnipotent, and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you. Teach yourself, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self conscious activity. आत्मा के बारे में सोचो। अपने शरीर और मन के पीछे स्थित आत्मा के बारे में सोचो। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जिस हद तक हम अपने आप को झूठे व्यक्तित्व से अलग करके आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, हमें निर्भयता और शक्ति मिलती है, हमें पवित्रता और शांति मिलती है। जिस हद तक हम खुद को ईश्वर के साथ पहचानते हैं, हम संत बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहिर्मुखी होता है तो वह पापी बन जाता है, और जब वह अपने आप में सिमट जाता है तो वह संत बन जाता है। नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता का रहस्य यह है कि हम अपने आप को एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में देखें, जो स्वभाव से शुद्ध और अपने सार में स्वयं प्रकाशमान हो। अपने ध्यान के दौरान हमें इस विचार को अपनी चेतना की गहराई में उतारना होगा, और फिर आत्मा की शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान प्रकृति शरीर और मन में भी प्रकट होगी। जो लोग अपने पापों पर रोना चाहते हैं, उन्हें हर हाल में रोना चाहिए। दूसरी ओर हमें अपने भीतर मौजूद शरीर, ईश्वर, सदा सदा शुद्ध और शाश्वत आत्मा के बारे में सोचना चाहिए और उसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि भले ही मन में बादल छाए हों, बुराई की ओर झुकाव हो, स्वामी विवेकानंद के ये अद्भुत शब्द हैं कि उठो, जागो, कमजोरी के इस सम्मोहन से जागो। वास्तव में कोई भी कमजोर नहीं, आत्मा अनंत सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। खड़े हो जाओ, खुद को मुखर करो, अपने भीतर के ईश्वर की घोषणा करो, खुद को सिखाओ, सबको उसका असली स्वरूप सिखाओ। सोई हुई आत्मा को पुकारो और देखो कि वह कैसे जागती है।
शक्ति आएगी, महिमा आएगी, अच्छाई आएगी, पवित्रता आएगी और वह सब कुछ जो उत्कृष्ट है वह आएगा जब यह सोई हुई आत्मा आत्मचेतन गतिविधि के लिए जागृत होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल होगा नेक्स्ट चैप्टर 15 चैप्टर इंटीग्रेशन एंड पर्सनैलिटी एंड इनर पॉइज। तब तक के लिए नमस्कार।